So in this lecture we are going to discuss about the mechanical testing. So in the last class we have discussed about the stress strain diagram for ductile and the brittle material. Now we are going to discuss the testing of materials, in which let's see what are we are going to study. I think my sound is audible and clear. If you have any problem, then you can comment. Okay, in the last lecture, the audio was not clear. That was connected to the microphones, so that was not clear voice. But now it is clear, I think. Yeah, it is clear. So let us start with today's lecture. Okay, I can read your comment here. So first of all, why material testing is required? We should know why it is required to test any material. So for getting the properties of any material, we have to conduct test, like the property like tensile strength and yield strength, elongation, toughness, and etc. There are various property we can calculate by testing, and which is used as design input. Means for designing you need to know the properties of the material. For example, if you have to make a chair or a table, so you should know which type of material can be used, and what is the capacity and the property of the material. Suppose you are taking the steel, so steel rod, you have to consider the steel rod, and based on the property you will select the diameter of the steel rod. So in this way you can design anything. Okay, so the material properties are required. For example, you are making bridge, so where the high strength materials are required and with the proper design. So you should know the properties. Okay, and another thing is that make informed choices in using raw materials. Another thing is to check the property of the material after heat treatment, welding, brazing, and other operations. So material testing is also required to, you should know the properties after various operations like heat treatment and welding. In welding, what happens? Suppose you have two metal, you have to weld with this point, so you just weld it. So what will happen? Welding is the very high temperature phenomena. So the atomic structure in the nearby area will get changed. So what will happen, as the atomic structure will change, its property gonna change. So we should study about this thing, that after welding we should have a very good product, but suppose this product is not good because due to the high temperature its property get changed, and suppose this is more brittle as compared to the parent material, then this is a serious issue. So testing is required after this operation also, right? And another point is to ensure batch and the quality, production quality. So testing is required to see the quality. Okay, and another thing as the part of maintenance and prevent the failure in usage. So we keep on testing the thing whether it is proper or not, is it good to use or not. Like chair, if you have a chair, you test the chair by just seeing the chair condition. Yeah, you can see, so it's a kind of test. So material testing is required for various things, right? So let's see what are those tests we are going to study. Like type of material testing, first of all it is categorized into two parts. So first part is the destructive testing, or it is also known as the mechanical testing, right? And the second one is non-destructive testing, that is NDT. So
let's see what is the difference between these two. First one is destructive and the second one is non-destructive. So in destructive testing, you are going to destruct the material or the sample. Like in the tensile test, what do? You just take a sample and apply the load until this sample is broke down into two parts. So this thing is broke down, means you are destroying the specimen, the product, while doing testing. And the second point is non-destructive testing, means in this your material is not harmed and it is for further use. Like see, you can see the first point, samples or finished product are tested without spoiling the product. So without spoiling, you are doing that test, and the example of this test are radiography, dye penetration test, etc. But the second part is not in your syllabus. Non-destructive test is not in the syllabus of your engineering materials. That is in the syllabus of mechanical engineering, but not in electrical engineering. Okay, so we are not going to study the non-destructive test here. We are just going to study the destructive test, and in destructive test we are going to study about the measure the strength and hardness and some toughness test. Okay, impact test. So let's see what are those tests we are going to study. So first is your tensile test. See, the tensile test, we already discussed that using this test we got the stress strain curve. Okay, so using this test we get the stress strain curve. So let's see what are those important points. It is performed on universal testing machine. So your tensile test is performed on UTM. तो आपका जो tensile test है वो किस में कंडक्ट होगा? UTM में होगा. And here you can see uses the load cell, extensometer to measure force exerting in specimen and percentage elongation respectively. मतलब इसमें क्या होता है, आपका जो UTM मशीन होगा उसमें क्या लगा हुआ है? एक load cell, and apart from this load cell we have one extensometer, not in one in quantity, means one type of cell is your load cell and another thing is extensometer. So load cell will measure the force, right, and the extensometer measure the extension, or you can say what is the change in the length, elongation. Okay, so these two things are measuring the force and extension respectively, and here the load versus elongation then plotted and studied. यही आपका क्या बन के आया? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व. तो आपका लोड मिल गया, आपका elongation मिल गया, तो आपने प्लॉट कर दिया एंड यू विल गेट दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, राइट. एंड द वेरिएबल्स, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा, वेरिएबल्स सच एज स्ट्रेन, stress, elasticity, tensile strength, ductility and shear strength are measured and computed. So these type of things can also be measured in UTM. That's why it is called as universal. Universal means it has multifunction. It's a multifunctional machine which can measure various things like strain, stress, elasticity, tensile strength. So first of all we are going to measure what? Force and extension or elongation. Based on that we can calculate various other property like elasticity, Young's modulus, what is the ductility, all these things. Okay, so what are the important point here is that what is the specimen. ठीक है, तो आपको जो स्पेसिमेन क्या है वो कैन बी राउंड और द फ्लैट हो सकता है, बट मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज दिस दी राउंड बार. जो हम लोग स्पेसिमेन यूज करते हैं राउंड बार होता है. तो इसका ऐसा है कि जो आपका राउंड बार है स्पेसिमेन है वो उसका भी कुछ सर्टेन डायमेंशन है. सो सी द डायमेंशन, यू कैन सी हियर. ओके, so this is the dimension of the specimen. This is the standard dimension of the specimen. Like this was a total rod. Initially this was the uniform diameter rod,
like this, and after some machining we get the size of this, shape of this, like this and this and like this and like this. Okay, so we get this form of a specimen. So why we get this form of a specimen? Because we know the thing will break where the area is minimum. So this will not break from here or here, it will break between this these two length, these 2 point, it will break between these 2 ends. ओके, तो मतलब ये है कि आपको जो स्पेसिमेन बनाने का ये कारण है कि क्यों बनाया गया ऐसा, कि जो आपको मटेरियल जहां कम होगा वहीं से आपका ये क्या बोलते हैं ब्रेक होगा स्पेसिमेन. दैट्स व्हाई वी गेट दिस गेज लेंथ एंड दिस डायमीटर हियर. सो व्हाट इज द कंसिडरेबल डायमीटर? दिस इज द कंसिडरेबल डायमीटर, जो भी आपका कंसिडर होगा आप कैलकुलेट करने के लिए कि व्हाट इज द ओरिजिनल एरिया. तो आपका ये वाला डायमीटर को कंसिडर करना पड़ेगा ओरिजिनल एरिया के लिए, ठीक है. और वाल लेंथ, तो लेंथ आपको क्या लेना पड़ेगा, ठीक है. तो इसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, पूरा जो भी स्टडी होगी इसके ऊपर ही होगी, गेज लेंथ और इस डायमीटर के ऊपर. और जो ये वाला पार्ट है ये तो सपोर्ट के लिए, क्योंकि जो मशीन से आपने ऐसे क्लैंप किया है और यहाँ से मशीन से ऐसे क्लैंप किया तो उसके लिए ये. और जो मेन स्टडी का पार्ट है वो गेज लेंथ होता है और ओरिजिनल एरिया, क्योंकि ये डायमीटर है बीच वाला, इससे मतलब है अपने को, ठीक है. और ये जो डायमेंशन है आप याद कर लीजिए तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बस ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक गेज लेंथ होता है और जिसमें रिड्यूस सेक्शन होता है. रिड्यूस सेक्शन क्यों होता है? ताकि जो आपका स्पेसिमेन हो इनके बीच से ही क्रैक हो, ठीक है. डायमेंशन देखेंगे तो ये इंच में है, लाइक 2 इंच एंड 0.505 इंच. ओके, so this is your machine. So this is the machine, universal testing machine. इसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है. क्या होता है देखो, ये आपका लोड सेल है, ठीक है. ये एक्सटेंसोमीटर लेके रखा है. मेन चीज़ ये है. जो बाकी है आपका रिजिड सपोर्ट है और बाकी भी काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वही लोड सेल और एक्सटेंसोमीटर ही बताया गया, और बहुत सारे कंपोनेंट और होंगे इसमें. तो इसका जो मेन आपका यूज है वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल का टेस्टिंग के लिए है. और इसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट कर पाओगे. इससे क्या होगा, लोड सेल से आपको लोड पता चलेगा कितना फोर्स है और एरिया से डिवाइड करके आपका स्ट्रेस आ जाएगा. और एक्सटेंसोमीटर से आपका डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन पता चल जाएगा, ठीक है. डिफॉर्मेशन पता चल जाएगा. तो इसमें तो फिलहाल इतना ही है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन. तो आपका इसमें क्या था, टेंसाइल टेस्ट है, जिसमें आपको क्या पता करना था कि ये क्या होता है टेंसाइल टेस्ट. टेंसाइल टेस्ट क्या था कि आपने जो स्पेसिमेन लिया है उसमें आपने क्या है, स्पेसिमेन में लोड लगाया, और जब ऐसे लोड लगाओगे स्पेसिमेन में तो क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा. तो आपको लोड और डिफॉर्मेशन सब कैलकुलेट करके रिजल्ट प्लॉट करना है, ठीक है. तो आपका क्या है, जैसे कि ये माइल्ड स्टील के लिए मान लो कर दिए, फिर अलग मटेरियल चेंज किए तो उसके लिए कर लिए, तो सबके लिए ऐसे करेंगे तो ग्राफ अलग अलग मिलेगा. जैसे कि हमने देखा था कि अलग अलग ग्राफ मिला था सब मटेरियल्स का, तो उसमें भी ऐसे अलग अलग आपको ग्राफ मिल जाता है, ठीक है. फिर यूटीएम हो गया. उसके बाद आप देख लीजिए कि इसमें जो क्रैक आ रहा है वो कैसा आ रहा है. जैसे कि आपका अगर डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, टूटने से पहले क्या होता है, इलांगेट ज्यादा होता है, मतलब उसमें नेकिंग होती है. तो यहाँ पे देख लीजिए ये 3rd और 4th फिगर जिसमें मैंने टिक किया है, ये डक्टाइल मटेरियल का दिखा रहा है. ये 3rd फिगर में समझ लीजिए डक्टाइल है और 4th वाले में कुछ ज्यादा ही डक्टाइल है, इट्स वेरी डक्टाइल. तो क्या हो रहा है, देख लीजिए कोन बन रहा है, ठीक है. और इसमें देख लीजिए पॉइंटेड कोन बन रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डक्टाइल है. इसमें मतलब ये क्या है कि बहुत ज्यादा इलोंगेट हो उसके बाद जाकर टूटा, ज्यादा डक्टिलिटी होने पर. और जो पहला वाला, ये दूसरा वाला देख लीजिए फिगर में, ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल है. तो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, उसमें इलोंगेशन नहीं होता, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है उसमें इलोंगेशन होगा नहीं ब्रिटल मटेरियल में, तो वो टूटेगा तो झटके से टूटेगा और पूरा क्रॉस सेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूटेगा. मतलब जो भी क्रॉस सेक्शन है आपको एकदम क्लियर दिखेगा, लाइन, एक लाइन जैसा, ये एक प्लेन जैसा रहेगा टूट के. तो ये जो फिगर है डक्टाइल वाले का, आपको कप कोन दिख रहा है,
तो ये ब्रिटल वाले का देखिए एकदम सॉलिड दिख रहा है, पूरा एकदम प्लेन दिख रहा है, ठीक है। तो यही है इसमें, जैसे कि दिखा रहा है कि कप एंड कोन फ्रैक्चर, अगर लिख रहा है कि कप एंड कोन फ्रैक्चर किन कौन से मटेरियल में होगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, जो डक्टाइल मटेरियल। क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में पहले एलोंगेशन हल्का सा होगा, नेक फॉर्मेशन होगा, उसके कारण ही कप कोन फ्रैक्चर डक्टाइल मटेरियल में मिलता है। और shear fracture indicates a brittle material, ठीक है। shear fracture मतलब ऐसा लग रहा है कि shear ऑफ हो गया है सरफेस। अब ये भी जो प्रॉपर्टी है, ये आपका टेंसाइल टेस्टिंग से क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, मेलेबिलिटी, मॉडुलस ऑफ टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये सब मिलती है आपको। डक्टिलिटी तो इलोंगेशन से पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के एनालिसिस से पता चल जाएगा, मैक्सिमम जो आपका स्ट्रेंथ आ रहा था, जो कर्व था आपका ऐसा गया, गिल्ड आया, जो भी है, फिर मैक्सिमम आया, तो ये स्ट्रेंथ कर्व से पता चल जाता है, ठीक है। डक्टिलिटी इलोंगेशन से पता चल गया। इलास्टिसिटी में जैसे आपका जो कांस्टेंट होता है ई जी, तो ये ई जी तो इससे रिलेट हो जाएंगे सिग्मा ई से, ठीक है। स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस आपका क्या होता है कि कितना इलोंगेशन करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ठीक है। तो स्टिफनेस फोर्स डिवाइड बाई डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है, वहां से ये भी पता चल जाता है। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब ये है कि अगर आप कोई मटेरियल को कंप्रेस करो और वो फ्रैक्चर ना हो, वो क्या बन जाए, एक उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो इंक्रीज हो जाए, तो मेलिएबल मटेरियल होता है, ठीक है। ये हो गया। और ये देखिए, ये मॉडुलस ऑफ टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी रेजिलियंस। तो ये क्या, पहले ये समझ लीजिए कि ये है क्या। तो अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ टफनेस की बात करें, तो क्या होता है कि मान लो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, like this, some yielding, and then after, and this is the fracture point, right? So if you take the area of this diagram, आपने पूरा एरिया कंसिडर किया, कब तक, फ्रैक्चर पॉइंट तक। तो ये जो एरिया शो करेगा वो क्या शो करेगा, दिस इज द मॉडुलस ऑफ टफनेस। या फिर बोल सकते हो कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया कोई भी मटेरियल टूटने से पहले या फ्रैक्चर होने से पहले, ठीक है। कोई मटेरियल और ज्यादा एनर्जी लेके फ्रैक्चर हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसको मॉडुलस ऑफ टफनेस ज्यादा है, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ टफनेस जब ज्यादा रहेगा तो वो इम्पैक्ट लोडिंग भी सह सकता है मटेरियल, और डक्टिलिटी भी शो ज्यादा करेगा मटेरियल। तो एक प्रकार से जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो ज्यादा टफनेस शो करते हैं, और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनका टफनेस कम होता है, मतलब मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द एनर्जी, ये एनर्जी है, जितना ये कर्व में एनर्जी आ रहा है ना, मतलब ये जो क्रॉस, ये जो कर्व है इसका एप्सिलॉन एक्सिस या फिर स्ट्रेन एक्सिस पे हमने एरिया निकाला, तो यही जो एरिया है वो क्या मिल रहा है, मॉडुलस ऑफ टफनेस है। ये एक प्रकार से एनर्जी है। मॉडुलस ऑफ टफनेस मतलब कितना एनर्जी चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम में किसी मटेरियल का, ताकि वो फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। और ये सिमिलर थिंग है एक रेजिलियंस। अगर रेजिलियंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, कहाँ तक जाएंगे, अगर रेजिलियंस की बात करेंगे तो अप टू इलास्टिक लिमिट जाना है हम लोग को, केवल इतना। तो ये जो एरिया आएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अगर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात करें तो इलास्टिक लिमिट तक, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। So up to elastic limit, the area under sigma epsilon curve gives you the value of modulus of resilience, ठीक है। तो यहाँ तक का जो है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो गया, इलास्टिक लिमिट तक का जो एरिया कंसिडरेशन है सिग्मा एप्सिलॉन डायग्राम में, और अप टू फ्रैक्चर पॉइंट अगर करेंगे तो टफनेस है। तो इम्पैक्ट लोडिंग के लिए अगर बोलते हैं कोई मटेरियल अच्छा है इम्पैक्ट लोडिंग में, इसका मतलब उसका मॉडुलस ऑफ टफनेस अच्छा है, ज्यादा है। सो नमस्ते सर, आ रहा सर। फिर आता है हार्डनेस टेस्टिंग।
तो हार्डनेस टेस्टिंग में देख लीजिए क्या होगा। जैसे कि आपका पहला टेस्टिंग था टेंसाइल टेस्टिंग एंड द अनदर टेस्टिंग इज योर हार्डनेस टेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द हार्डनेस। तो हार्डनेस में क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हार्ड है इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका सरफेस होगा उसका सरफेस में हम लोग स्ट्रेच करना चाहें या फिर पेनिट्रेशन करना चाहें तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा पेनिट्रेट करना। या फिर इसका अगर और एक डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है डेफिनेशन, इट इज द मेजर ऑफ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू लोकल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसी को बोल देते हैं स्मॉल डेंट और स्क्रैच। मतलब मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू लोकल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लोकल बोल रहा है, मतलब अगर कोई मटेरियल आपने ले लिया और इस पॉइंट पे अगर मैंने क्या बोलते हैं स्क्रैच करने की कोशिश किया एक पर्टिकुलर पॉइंट में, तो वहां पे क्या लोकल डिफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हो रहा है मतलब हार्डनेस कम है और नहीं हो पा रहा है तो हार्डनेस उस मटेरियल का ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हार्डनेस आपकी जो प्रॉपर्टी वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई भी मटेरियल के आउटर सरफेस पे क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हार्डनेस है। इनसाइड द मटेरियल से मतलब नहीं हार्डनेस को। सपोज अगर इस मटेरियल को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, उससे मैं नहीं बता पाऊंगा उसका हार्डनेस ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी मटेरियल की जो एक सरफेस पे देखी जा सकती है और क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस टू लोकलाइज्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मींस इफ यू आर नॉट एबल टू स्क्रैच ऑन अ मटेरियल देन इट इज वेरी हार्ड, ओके। तो आपको क्या करना है, अगर दो मटेरियल लेना है एक दूसरे में स्क्रैच करो, जिसमें स्क्रैच पड़ गया वो कम हार्ड होगा और जो स्क्रैच करेगा दूसरे मटेरियल पे वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हार्डनेस। और इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें आपकी जो हार्डनेस टेस्टिंग टेक्निक होती है वो कई सारी होती हैं। क्वांटिटेटिव हार्डनेस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स इन विच अ स्मॉल इंडेंटर इज force into the surface of material। ठीक है सर, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर रख दो सबसे सही। थैंक यू। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका हार्डनेस होता है तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या तरीका है, ठीक है। तो हार्डनेस टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट में आप एक इंडेंटर या फिर कुछ कोन या फिर बॉल के हार्ड फॉर्म को जिस मटेरियल पर टेस्ट करना उसमें आप क्या करते हो, उसको मतलब फोर्स लगाते हो, देखते हैं कि कितना उसमें डेंट आया है, इंडेंट आया है, और उसको मेजर करते हैं, तब पता चलता है कि हार्डनेस कितना है। तो अभी देखेंगे क्या है। So let's see the point, the depth or the size of the resulting indentation is measured. So the indentation जो मेजर करेंगे वो आपको क्या बताया कि हार्डनेस नंबर कितना है, ठीक है। जैसे कि इन विच जैसे सॉफ्टवेयर मटेरियल होगा तो उसमें आपका लार्जर इंडेंटेशन आएगा और जो आपका हार्ड मटेरियल होगा उसमें इंडेंटेशन कम आएगा। अब ये जो क्या बोलते हैं आपका जो हार्डनेस टेस्ट है वो ऐसा नहीं कि एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है। मतलब अगर आपने एक टेस्टिंग से मतलब टेस्ट किया, सपोज करो कि आपने एक ये हार्डनेस टेस्ट किया टेक्निक 1 से, ठीक है, तो इससे आपकी जो वैल्यू आ रही है, सपोज आपने हार्डनेस टेस्ट किया टेस्टिंग मतलब दूसरे मेथड से, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आपने कोई मटेरियल Fe लिया तो यहाँ पे Fe लिया तो इसमें कुछ रिजल्ट आया, इसमें कुछ अलग रिजल्ट आया, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसका कोई एब्सोल्यूट आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा प्रॉपर तरीके से, कि जैसे एनर्जी होता है कि इतना एनर्जी है, इतना किलो जूल एनर्जी, लेकिन हार्डनेस का क्या यूनिट ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से आप ये नहीं बता पाएंगे कि इससे टेस्ट करके ये आ गया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। आप रिलेटिव पता लगा पाओगे। जैसे कि आप क्या बोलते हैं हार्डनेस टेस्ट किए फेरस का, आपने किया कॉपर का, आपने किया सपोज डायमंड का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने तीनों का अगर एक टेस्टिंग से किया, सपोज आपने टेस्टिंग 1 से तीनों को परफॉर्म किया, तो उसमें आप रिलेशन बता पाओगे
कि कौन सा ज़्यादा हार्ड है, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, जो भी है। तो आप एक टेस्टिंग लोगे तो उसमें आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो बाकी मटेरियल को, अगर उस टेस्टिंग से परफॉर्म कर रहे हो। और अगर बाकी दूसरा टेस्टिंग लोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा कि प्रॉपर आप बता नहीं पाओगे कि हार्डनेस किसमें क्या है, ठीक है। तो एक सिंगल हार्डनेस टेस्ट लेके वेरियस मटेरियल का आप वो कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि ये पॉइंट लिखा हुआ है, मेजर हार्डनेस वैल्यू आर ओनली रिलेटिव, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता ये। एंड द रेयर एंड द केयर शुड बी एक्सरसाइज व्हेन कंपेयरिंग दिस वैल्यू डिटरमाइंड बाय डिफरेंट टेक्निक, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हार्डनेस टेस्ट किया तो आप कंपेयर करते समय केयर आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू है और ये वैल्यू है तो एकदम सेम ही आएंगे, अलग अलग आएंगे, वो कुछ भी हो सकता है, कंपेयर करना आपको। तो इसमें हार्डनेस टेस्ट में देखते हैं कि क्या क्या है। फिलहाल आपको क्या देखना है, इसमें 4 ही देखना है। जैसे कि आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट है, इसमें इंडेंटर है, इसमें आपका शेप ऑफ द इंडेंटेशन है, और दिस इज द फॉर्मूला यूज फॉर द हार्डनेस नंबर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको आपको देखना है। जैसे कि आपका मेन चीज क्या है, जैसे कि ब्रिनल है, ठीक है, ब्रिनल हो गया। इसमें देखो क्या हो रहा है कि 10 mm इज मेरी स्फीयर और स्फीयर ऑफ स्टील और टंगस्टन कार्बाइड इज यूज। और इसमें क्या हो रहा है कि हार्डनेस नंबर आपको कैसे पता चल रहा है, H मतलब हार्डनेस और B फॉर से ब्रिनल नंबर, ठीक है। तो ब्रिनल टेस्ट किया है और उसमें हार्डनेस नंबर निकाला तो उसको HB शो कर रहा है, उसके लिए फॉर्मूला है, मतलब उसमें आपका लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डी मतलब कौन सा डायमीटर, जो बॉल का डायमीटर था, स्टील बॉल का या टंगस्टन कार्बाइड, उसका डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दिस स्मॉल डी इज दी जो आपका पेनिट्रेशन हुआ है सरफेस के ऊपर, उसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है डी, वो है, ठीक है। तो मतलब ब्रिनल टेस्ट में वो क्या करना है, जब भी कोई भी हार्डनेस टेस्ट उसमें क्या करना है देख लो। जैसे कि आपने ये ऑब्जेक्ट लिया, सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो आपने क्या किया कि इसके ऊपर एक बॉल रख दिया ब्रिनल वाले के लिए, ठीक है। तो आपने एक बॉल रख दिया ऐसा, जो ऐसा टच कर रहा है। अब आप क्या करोगे, इसमें आपने लोड सेल या फिर जो भी अदर आपका वो है मशीन वगैरह है, उससे आपको क्या करना है, लोड लगाना है अपने। अब क्या होगा, जब आप इसमें लोड लगाओगे, आपने ये कौन सा बॉल लेके रखा है, दिस इज टंगस्टन कार्बाइड। तो ये क्या है, ये पहले से काफी हार्ड मटेरियल है। टंगस्टन कार्बाइड इज वेरी हार्ड एज कंपेयर टू द मेजरिंग सैंपल। ये जो सैंपल आपने लेके रखा है, इसकी हार्डनेस कम होगी टंगस्टन कार्बाइड से, तब जाके इसमें आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, ये भी बात है, ठीक है। सैंपल, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये जो डायमीटर है बॉल का, ये क्या है, डी है, दिस इज द डी डायमीटर। अब क्या करोगे, जब इसको आप लोड लगाओगे तो क्या होगा, आपका सैंपल में कुछ ये ऐसा घुस जाएगा बॉल, ठीक है। तो ये जो डायमीटर आ रहा है, ये वाला डायमीटर, दिस इज स्मॉल डी। तो टॉप व्यू से जब इसको देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे तो कैसे दिखेगा, सैंपल में आपका ये डी डायमीटर दिखेगा, स्मॉल डी, ठीक है। तो ये डी डायमीटर दिखेगा आपको। तो ये आपका डी हो गया, ऊपर से दो लोड लगाया पी हो गया, और ये जो डी डायमीटर है कैपिटल डी, वो तो बॉल का डायमीटर हो गया, स्टील बॉल का या फिर टंगस्टन कार्बाइड बॉल का, जो भी है वो डायमीटर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपका हार्डनेस नंबर क्या मिलता है, ऐसे मिल जाता है इस डायग्राम से। तो इसको याद रखने के लिए थोड़ा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि इतना है कंफ्यूजन भी हो सकता है इसमें। जैसे कि ये समझ लो कि आपका ब्रिनल वर्ड आ रहा है, ब्रिनल, ठीक है। ब्रिनल में लास्ट में देखिए क्या है, डबल एल है, ठीक है, जिस इज ब्रिनल। तो ये डबल एल से आप ये याद रख लेना कि बॉल में भी डबल एल होता है, तो ये दोनों एल एक साथ रहेंगे, बॉल का डबल एल और ब्रिनल का डबल एल, मीन्स इसमें आपको बॉल यूज करना है, ठीक है, स्फीयर। तो ये आपको याद हो जाएगा ब्रिनल से कि आपको डबल बॉल यूज करना है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया बॉल वाले के लिए। और हार्डनेस नंबर आपका कैसे शो करेगा ब्रिनल वाले में, H मतलब हार्डनेस और B फॉर ब्रिनल नंबर, तो HB से शो करते हैं। और जो फंक्शन है वो किसका है, P मतलब जो लोड अप्लाई कर रहे हो उसका, D मतलब डायमीटर ऑफ द बॉल, स्टील बॉल, हार्डन बॉल,
and the small d is the diameter of the indentation on the sample। ये हो गया रिनल वाला। विकर वाले में देख लीजिए क्या है, विकर और नूप माइक्रो हार्डनेस। तो इसमें देख लीजिए दोनों एकदम सिमिलर है, विकर एंड द नूप वाला, जो भी ये दोनों सेम है। अंतर क्या पड़ेगा, थोड़ा सा डायमेंशन में चेंज पड़ेगा। जैसे वी वाले में क्या है, ये सिमिलर है दोनों लेंथ, और यहाँ पे सिमिलर नहीं है। तो जैसे कि वी वर्ड आता है आपका विकर, तो विकर से वी आ गया, तो वी से अपना क्या हो गया, ये वाला डायमंड से भी याद रखना। तो विकर और नूप एक साथ है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और वी से आप याद रख सकते हो, तो वी मतलब हम तुम जो भी है, मतलब हम तुम इक्वल, ये समझ लो। मतलब D1 और D1 दोनों इक्वल रहेंगे V वाले में, ठीक है। और क्या होगा, डिफरेंस किसमें होगा, नूप वाले में, नोप दैट इज नॉट इक्वल, सो L एंड V आर नॉट इक्वल हियर। तो और देख लो क्या है कि इसमें जो हार्डनेस नंबर है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, H फॉर हार्डनेस, V फॉर विकर, एंड यू कैन सी P जो आपने लोड लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड द D1। और यहाँ पे देख लो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल L के ऊपर कर रहा है। ये H हो गया हार्डनेस एंड K फॉर द नूप, एंड हियर यू कैन सी T फॉर द लोड एंड L, यू कैन सी द L हियर, दिस इज द L। और इसका विड्थ कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नूप और विकर का भी थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा। और बचा रॉकवेल एंड सुपरफिशियल रॉकवेल। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें ये होता है कि आपका जो रॉकवेल वाला टेस्ट होगा, इसमें पहले एक माइनर लोड लगता है, फिर एक मेजर लोड लगता है। माइनर वाले में सपोज करो 10 किलोग्राम लगाते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में 60, 100 या 150 और क्या, ठीक है। ये माइनर लोड हो गया और ये मेजर लोड हो गया, किसके लिए, रॉकवेल के लिए। और उसी प्रकार से इसमें लगभग 3 kg का माइनर लोड लगाते हैं और ये मेजर लोड लगाते हैं, इसमें सुपरफिशियल रॉकवेल में। तो जैसे नाम देख लो, सुपरफिशियल रॉकवेल, और इसमें कम लोड लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें आप जो इंडेंटेशन है वो कम कर रहे हो, ठीक है। और रॉकवेल वाले में ज्यादा करो, मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो एक प्रकार से सैंपल को, और इसमें कम पहुंचा रहे हो, ठीक। तो इसमें दोनों यूज होता है, रॉकवेल वाले में आपका कोन भी यूज होता है और बॉल भी यूज होता है, ठीक है। रॉकवेल डबल एल आ गया तो बॉल यूज हो जाएगा, और रॉक की तरह ये है पिरामिड, ठीक है। तो इसमें दोनों यूज होता है रॉकवेल। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स। अब एक एक करके आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, ठीक है। पिछले वाले सर बोला था लेकिन वो कहते हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे, वो कहते हैं सेंटर पिछले वाले तो तो देखिए आपका जो पहला आ रहा है, ये आ रहा है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। सो यू हैव टू रीड द पॉइंट्स, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ज़्यादा याद करने का नहीं। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू काफ़ी सारे हैं, ये सब याद करने के नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि रॉकवेल टेस्ट क्या है। So first of all, the first point, just read it. The Rockwell test constitute the most common method used to measure hardness because they are so simple to perform and require no special skill. तो काफी सिंपल है, आसानी से हो जाने वाला टेस्ट है Rockwell hardness test. अब जैसे कि इसमें बोल रहा है कि several different scales may be utilized from possible combination of various indenters and different loads. तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ये सब हमको याद करने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट को, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें अगर अलग अलग स्केल्स हैं जो हैं, उसके डिटेल हमको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें देख लो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड्स स्फेरिकल हार्डन स्टील बॉल्स हैविंग डायमीटर दिस एंड कोनिकल डायमीटर दिस, ठीक है। तो ये याद रखने की बात है कि आपका स्टील बॉल होता है यूज, और साथ ही साथ आपका कोनिकल डायमंड यूज होता है, दोनों यूज होते हैं, ये बात याद रखना है। अब जो ये डायमंड है वो किसके लिए यूज होगा, जब आप किसी हार्डेस्ट मटेरियल, मतलब काफी हार्ड मटेरियल का टेस्ट करोगे जो स्टील से भी ज्यादा हार्ड है, तो आप उसको टेस्ट करने के लिए उससे भी ज्यादा हार्ड मटेरियल यूज करोगे, दैट इज दी डायमंड, ठीक है। तो स्टील बॉल का यूज कहाँ करते हैं, जब
जो सैंपल है उसकी हार्डनेस कम होती है, और जब सैंपल की हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, स्टील से भी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे कॉनिकल डायमंड। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए क्या है। दी हार्डनेस नंबर इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एन इनिशियल माइनर लोड फॉलोड बाय द लार्जर मेजर लोड। यूटिलाइजेशन ऑफ अ माइनर लोड एनहांस द टेस्ट एक्यूरेसी। तो ये जो आपको लाइन बोल दी है, क्या बोल रहा है देख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका टेस्ट होगा रॉकवेल वाले में एंड सुपरफिशियल रॉकवेल दोनों में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले आपको माइनर लोड लगाना है और उसके बाद आपको क्या लगाना है, मेजर लोड। तो ये जो माइनर लोड हम लोग इनिशियल लगा रहे हैं वो क्या होता है कि आपको माइनर लोड मतलब कम लोड, मेजर लोड मतलब ज़्यादा लोड। तो आपने इसे सैंपल ले लिया है, तो आपने मान लो ये बॉल के साथ टेस्ट किया है, स्टील बॉल के साथ, तो पहले माइनर लोड लगाया, मान लो 10 kg लगा दिया, फिर एक इंडेंटेशन आएगा जो भी आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, सेम स्पेस में आपको क्या करना है, सेम बॉल के साथ आपको फिर मेजर लोड लगाना है। फिर 10 को हटाओ और यहाँ पे 60 किलो ले लो या फिर 150 जो भी है, ऐसा लगे फिर इसमें परफॉर्म करो। तो मतलब आपको 2 बार करना है, फिर आपको डिफरेंस देखना है। मान लो माइनर लोड लगाया तो आपका ये आया, इतना आया, सपोज ये माइनर वाले का आना है, ठीक है, और फिर आपने सेम सैंपल लेके मेजर वाले में किया तो ये आ गया मेजर वाले के लिए। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों हाइट है, सपोज दिस इज h1, दिस इज h2, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, h2 माइनस h1, दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट और यही मेजर करेगा आपका हार्डनेस। ठीक है, तो रॉकवेल में और देखिए क्या है, तो इसमें काफी पॉइंट और हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट्स सी, बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ मेजर एंड माइनर लोड्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, वन इज रॉकवेल एंड सुपरफिशियल रॉकवेल। ठीक है, तो ये दोनों है, आपको पता ही चल गया। अब देखो जो रॉकवेल होगा ना उसमें माइनर लोड कितना दे रहा है, 10 किलोग्राम, और फिर जो मेजर लोड आएगा वो 60, 100 और 150 किलोग्राम जाएगा। और सुपरफिशियल वाले के लिए 3 kg आपका माइनर लोड है, उसके बाद 10, 30 एंड 45 सॉरी 15, 30 एंड 45 kgs आर द पॉसिबल मेजर लोड वैल्यूज। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रॉकवेल वाले में 10 kg माइनर और उसके बाद 60, 100 और 150 मेजर। सुपरफिशियल वाले के लिए कितना हो गया, 3 kg माइनर और देन आफ्टर 15, 30, 45 दिस kg इज फॉर मेजर लोड। मेरे पास नहीं है सर, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप मैं भेज रहा हूँ आपको ये कॉपी नहीं हो पाती। फिर आता है सुपरफिशियल टेस्ट और frequently performed on the thin specimen. That is obvious because we are using less load, so it will be performed on the thin specimen. अगर आप थिन वाले में ज़्यादा लोड लगाओगे तो वैसे डिफॉर्मेशन हो जाएगा और आपको प्रॉपर वैल्यू भी नहीं मिल पाएगा। सो फॉर थिन स्पेसिमेन यू हैव टू परफॉर्म सुपरफिशियल टेस्ट, ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग लेस लोड। अब ये देख लीजिए, व्हेन स्पेसिफाइंग रॉकवेल एंड सुपरफिशियल हार्डनेस both hardness number and scale symbol must be indicated। कुल मिला के ये इंडिकेशन के बारे में बता रहे हैं, लेट्स सी ना। इसको आपको याद करने के लिए मतलब जो ये है ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए जैसे रॉकवेल हार्डनेस स्केल देकर रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, दिस इज द रॉकवेल हार्डनेस स्केल्स वेयर दिस इज द इंडेंटर्स, दिस इज द मेजर लोड्स, minor load is constant, that is 10 kilogram, okay, so these are the major load and these are the scale symbols like A, B, C, D. So HR is used for the hardness in Rockwell test, and some symbol like A will come here or there, something will happen, okay, and these are the symbols and these are the indenter used like diamond, cone, ball, diamond, cone, and these are the major loads. So you should not remember this thing,
जस्ट सी इट। ओके, आपको याद करने की जरूरत नहीं इतना सब कुछ, बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि मेजर लोड का रेंज क्या जा रहा है इसमें, और सुपरफिशियल वाले में जो लोड का रेंज है क्या है। और जैसे कि जो इंडेंटर है वो डायमंड और बॉल इसमें भी यूज कर रहा है और सुपरफिशियल वाले में भी यूज कर रहा है। एंड यू कैन सी दिस स्किल सिंबल फॉर हियर फॉर सुपरफिशियल इज लाइक the some numeric value and then alphabets, and here spell symbol for the Rockwell hardness is only alphabets। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट था, लाइक फॉर एग्जांपल 80 HRB रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉकवेल हार्डनेस 80 ऑन स्केल बी, तो ये बी आपका स्केल आ गया और 80 क्या आ गया, उसका एक हार्डनेस नंबर है, एक नंबर है जो हार्डनेस शो कर रहा है किसके लिए, रॉकवेल वाले के लिए। ठीक है, जैसे कि 60HR 30W। अब देखो 30W किसके लिए आ रहा है, ये न्यूमेरिकल के साथ अगर आपको कोई वैल्यू आ रहा है तो ये किसके लिए है, सुपरफिशियल रॉकवेल नंबर के लिए था। और अगर केवल अल्फाबेट आ रहा है तो ये किसके लिए था, रॉकवेल वाले के लिए था। ठीक है, तो ये 30W हो गया स्केल, और ये जो वैल्यू हो गई ये होगी हार्डनेस की वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या आता है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो यहाँ से हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर, यू कैन लीव।